Pratik Bhabe, one thing is sure now that Pratibha Vilas even 2016 had changed its gear on second day itself. Lot of Yes. close games in today's schedule. Yes, previous one was a very fantastic match. First one was a very good match between Bunty Sport and Maggie 11. So we are hoping for yet another close encounter, yet another fascinating encounter between Mahendra Sports and Viren Sports Thakurpada. And this is a big game. Once again, remind you, Mahendra Sports won the toss and elected to bat first. Yes, umpire signaling for sending the openers. And now two openers on the ground. The tennis cricket all over in India, ranking on number 203, Bilal Sheikh. Bilal Sheikh with Sujit Naik, these two are the openers. So two openers on the ground, Bilal Sheikh with Sujit Naik. Batsmen to follow, large batting to follow. Gyasuddin Sheikh, Sachin Gaikwad, Papia Kharik. Bilal Sheikh was the big name in tennis cricket in all over India. But in this season, I think Bilal Sheikh is struggling for his runs in Bhiwandi Cricket Taluka. But he is the class player. And as they said that class is permanent, form is temporary. So you can expect some good hitting in this match from Bilal Sheikh. He can come back strongly. Bunty opened the bowling attack. Welcome everybody in Pratibha Vilas A1 2016. You are watching the World A1 tennis cricket. Here goes Bunty. 5-5 was limited over match and 1 over batting choice power play. Here goes Bunty. Facing him Sujit Naik. Goes to Naik. Beautiful ball indeed. Beats him Sujit Naik off his front foot, and I think lovely delivery from Bunty. Wonderful start from Bunty. Pacey delivery just outside the off stump, and it was very full. Batsman using small back lip there, but beaten comprehensively. Bunty reaches bowling mark, turn from Asha Patil northeast end. Facing him batsman Sujit Naik. Goes to Sujit Naik, goes his back foot, square cut. Beautifully struck, but equally struck from the fielder left of him and serving 3 runs. A lot of width on offer there from Bunty, and batsman Sujit Naik latching on to the opportunity, but unfortunately he find the fielder there in the deep. Here goes Bunty, reaches bowling mark, turn from Asha Patil northeast side. Here he go. Goes to Bilal who chopped his ball, full and end delivery. Square of the offside, good running between the wicket. Fielder is trembling, and finally appeal for an out. An umpire take the help of third eye. So matter has been referred to the third umpire. Chopped as ball. There's the fielder at point slightly trembling. Batsman looking for a third run.
red light is on now and Sujit on his way. One shot signal from umpire, right decision. Include in total now and score was up to 2 for the loss of 1 wicket. Sujit Naik is out, run out. So that wasn't a great piece of running between the wickets between Sujit Naik and Bilal Sheikh. An early blow for Mahindra Sports. In place of Sujit Naik, new batsman is Akash. I think this is the slowest start from Mahindra Sport, 2 for the loss of 1 wicket. Bowling has been good from Bunty. Couple of good deliveries already in this over. One delivery was shot there outside the off stump, but other two deliveries have been very full. And here goes Bunty. Excellent bowling so far in this over. Facing him Akash, Bilal Sheikh on 1. Sujit is out for 1. This time full toss, base in the air, yes, he is out. This is the poor start from Mahindra Sport, won the toss and elected to bat first. Two important wicket has gone now. Now new man in Mukesh is the informed player in this season as far as Mahindra concerned. So 2 wickets in very first over. Mukesh can bat for all 5 overs. He has that ability. Next match between Nana Sport and Balaji Sport. Another tough encounter. High voltage match. It's a disaster start for Mahindra Sports. 2 for 2. 2 for the loss of 2 wickets. From here on, batsmen should try to build a partnership here. And here we watch Bunty turn from Asha Patil Northeast end. This time appeal for LBW, another wicket has gone now. Easy decision for the umpire on that occasion. So 3 wickets in first over. It's a dream start for Bunty. First over continue there, and it has been a sensational over so far from Bunty. He is on hat-trick, and you know about the LBW hat-trick in international cricket. Aqib Javed claim in Sharjah against India when Sachin Tendulkar, Ajay Jadeja and Mohammad Azharuddin. And that is the only LBW hat-trick in international cricket claimed by Aqib Javed.
It's a good opportunity here for Bunty. And so far in Taluka cricket, nobody claimed the LBW hat-trick. We have seen a lot of bold hat tricks in Taluka tennis cricket, but not LBW hat trick. Yes, in Mer Cup 2013, the bold hat-trick claimed by Sharif Nachan. Here we go. Oh, this time sensible push. Bilal looking for a run, no says by Ghiyasuddin. That marks end of the eventful over from Bunty, who given away 2 runs and Mahindra lost 3 wickets. एक ओवर की समाप्ति 2 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अजय सोचा भी नहीं होगा किसी ने जिस तरह की शुरुआत यहाँ पर वीरेन स्पोर्ट ठाकुर पारा ने की। और किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा कि गयासुद्दीन टेनिस क्रिकेट में गेंदबाज को इतना सम्मान देंगे, सुरक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश करेंगे। उनको पता था हैट्रिक पे आए, विकेटे पे विकेट गिर रही है तो मरता क्या ना करता। उन्होंने स्टंप्स को कवर किया और धीरे से गेंद को पुश कर दिया बॉलर की जानिब। और पहले ही ओवर में बंटी ने खतरे की घंटी बजा दी महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए। आने वाले बैट्समैन में सचिन गायकवाड बाकी हैं, पपिया खारिक बाकी हैं, लंबी बैटिंग लाइनअप है। लेकिन जब आपकी शुरुआत अच्छी नहीं होती तो कहीं ना कहीं जो मिडल ऑर्डर है उस पे ये देखिए बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। अब ये इसलिए लिया गया है कि जो दबाव पड़ा है उसको हटाना चाह रहे हैं बिलाल शेख और गयासुद्दीन शेख, या जो रन नहीं बन रहे उसके लिए लिया है। मुझे लगता है ये काउंटर अटैक करने की प्लानिंग हो सकती है। हम तो केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजों के मन में कुछ और भी चल रहा होगा। बिल्कुल, बिलाल शेख तो वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में टेनिस क्रिकेट खेलते हैं और ये जो रणनीति है यहाँ पर जरूर सोच। और क्या जोड़ी है अब क्रीज पर, गयासुद्दीन और बिलाल। उन्नीस बैट्समैन जो अर्धशतक लगा चुके हैं उसमें गयासुद्दीन का भी नाम है। सुभाष ठाकरे, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की जानिब से मुड़ते हुए इस मरतबा स्लॉग किया गेंद को, बहुत बढ़िया फील्डिंग, वहां पर 3 रन बचाए। फील्डिंग गजब की हो रही है। और पहले ओवर में जब 3 विकेट विपक्षी टीम के गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं फील्डर्स का हौसला जो है वो बढ़ जाता है, मनोबल ऊंचा हो जाता है। ऐसे में अच्छी फील्डिंग देखने को निश्चित रूप से मिल जाती है। राजन वहां पर मौजूद थे और पूरी तरह से चार्ज हो गई यहाँ पर वीरेन स्पोर्ट ठाकुर पारा। इस मरतबा बहुत खूबसूरत गेंद, आगे खींचा था, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को। बहुत खूबसूरत गेंद। दूर से छेड़खानी करने का प्रयास वहां पर गयासुद्दीन द्वारा। ज्यादा गेंदें उन्होंने खेली नहीं है और शुरुआत में ऐसा हो जाता है, कभी कभी पैर चलते नहीं है बैट्समैन के। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सुभाष ठाकरे। इस मरतबा गेंद को खेल दिया ऑन साइड में, जमीन के सहारे, सिर्फ 1 रन। अभी भी स्ट्रोक टाइम नहीं कर पा रहे हैं बिलाल शेख और गयासुद्दीन। मुश्किल स्थिति में इस समय महिंद्रा स्पोर्ट्स। पिछले मैच में कितने तेज रन बने थे। बहुत ज्यादा क्रीज की गहराई का इस्तेमाल कर रहे थे। वाइड घोषित दी अंपायर ने। 1 रन से स्कोर 5 रनों पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पे। सुभाष ठाकरे की कोशिश है कि ऑफ स्टंप से दूर ही रखा जाए। बैट्समैन ऑन साइड में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माइंड को पढ़ लिया है बैट्समैन के। इस मरतबा फिर से अच्छी गेंद थी, फिर से मिस टाइम स्ट्रोक। गेंद शॉर्ट मिड विकेट पे फील्ड होती हुई सिर्फ 1 रन। ऐसे लग नहीं रहा है कि महिंद्रा स्पोर्ट इस वक्त बल्लेबाजी कर रही। गहरे दबाव में इस समय बल्लेबाज उस दबाव को हटाने की कोशिश कर रहे हैं बिलाल शेख और गयासुद्दीन शेख, लेकिन उसमें अभी तक ज्यादा सफलता नहीं मिली है। सुभाष ठाकरे के पास अच्छा अनुभव है पावर प्ले में गेंदबाजी करने का।
सुभाष इस मरतबा रिवर्स करने की कोशिश, फिर से टाइमिंग अच्छी नहीं, सिर्फ 1 रन। लेग बाय का इशारा था अंपायर का। 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और 3 बड़े बैट्समैन आउट हुए, सुजीत नाइक, बैक टू बैक आकाश और फिर मुकेश। पावर प्ले में कुछ खास नहीं कर पाए हैं बल्लेबाज। 1.5 ओवर में आसिफ रंगरेज बता रहे हैं कि पूरी 1 ओवर डॉट के लिए 6 गेंदें डॉट के लिए। बहुत ही शानदार गेंदबाजी शुरुआत की थी बंटी ने, और अब सुभाष ठाकरे भी लाजवाब गेंदबाजी करते हुए। इस मरतबा फिर से रिवर्स खेला है, गैप में गेंद जा रही है, नहीं रोक पाएंगे। गेंद डीप थर्मैन बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। लेकिन बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं थी। खैर जो कुछ भी हो, वहां पर शॉर्ट थर्मैन के फील्डर ने अपने आप को झोंक दिया था, डाइव लगाई थी, लेकिन बहुत मुश्किल उनके लिए रोकना। इस चौकी की मदद से 2 ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर महिंद्रा स्पोर्ट 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अगला मुकाबला एक और बड़ा मुकाबला, जहां पे नाना स्पोर्ट और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच होने जा रहा है। दोनों कैप्टन को हमारे प्रियांशी स्टूडियो में हाजिर होना है। गेंदबाजी के लिए ये देखिए, बहुत जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं हेमंत पाटिल। उन्होंने कंटिन्यू रखा है बंटी को, इन्होंने पहले ओवर में काफी दबाव बढ़ा दिया था। सामना करेंगे गैसुद्दीन शेख, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं और इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने में ज्यादा रुचि रखते हैं। इस मरतबा फ्लिक करते हुए फ्रंट फुट पे 1 रन, गेंद वाइडिश डीप मिड विकेट पे जाती हुई 12 पे पहुंचा स्कोर। हालांकि जो दोनों भी बल्लेबाज क्रीज पर है, बिलाल और गैसुद्दीन, कभी भी पलटकर वार कर सकते हैं, इतनी क्षमता है दोनों भी बल्लेबाजों के पास। लेकिन बंटी की तारीफ करनी होगी, और कप्तान ने उनको ये सोचकर फिर से दूसरा ओवर दिया है कि एक और विकेट निकाल कर दे। बिल्कुल, वही सोच की वजह से उन्हें गेंदबाजी दी गई है। फुल टॉस गेंद बहुत ही आसानी से खेल दिया है मैदान के बाहर, स्क्वायर लेग फेंस के ऊपर 6 रनों के लिए। ले से स्कोर उछलता हुआ महेंद्रा का पहुंचा है 18 रनों पर। फिर से देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत कैमरा वर्क। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बंटी। फील्ड की जमावट देखिए, 2 खिलाड़ी बिहाइंड दी विकेट जो सर्कल में थे, एक खिलाड़ी को अब 30 गज के दायरे पे एक्स्ट्रा कवर में लाया गया है। दूर दूर तक फील्ड को खोल दिया गया है। तीसरा ओवर चल रहा है, 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर महिंद्रा स्पोर्ट्स। बल्ला बदलने की मांग की है वहां पर बैट्समैन ने। बिलाल अपना बल्ला बदल रहे हैं, हालांकि पिछली गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ा है। और पिछली कुछ गेंदों पर तेज गति से रन बने हैं। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगा था, और इस ओवर में अब जो छक्का लगा है उससे काफी हद तक प्रेशर रिलीज हुआ होगा। 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बंटी।
बिलाल के लिए स्लॉक करने की कोशिश, थोड़ा सा लेंथ गेंद थी लेकिन अपने पैर को पूरी तरह से लंबा नहीं खींच पाए थे बैट्समैन। जी हाँ, मुझे कहीं ना कहीं मतीन की याद आई, जिस तरीके से मतीन पैर को बहुत आगे खींचते हैं बी इंडियन के और इस तरीके के स्ट्रोक खेलते हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बंटी। इस मरतबा बैक फुट पे गए, बहुत खूबसूरत पंच। डीप में फील्डर मौजूद हैं, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। काफी जगह दी थी बंटी ने इस गेंद पर। शॉट तो बहुत ही तगड़ा था लेकिन प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं कर पाए थे। जी हाँ, लेकिन टाइमिंग बहुत अच्छी थी। ऐसे में आत्मविश्वास बढ़ता है बैट्समैन का जब गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती है। इस मरतबा लंबा हिट, गेंद मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। बिल्कुल, अब ये क्लियर इंडिकेशन दिया है दोनों बैट्समैन ने कि रनों के लिए जाएंगे। यहाँ से अगर 50 के ऊपर टोटल निकल गया तो फिर कठिनाइयाँ आ सकती है। हालांकि बहुत मजबूत बल्लेबाजी वीरेन स्पोर्ट ठाकुरपारा के पास भी। कुल मिलाकर स्कोर 25 पे पहुंचा है, 3 विकेटों के नुकसान पे। एक समय था जब 2 पर 3 विकेट गिरे थे और अब बातों ही बातों में स्कोर 25 पर पहुंच चुका है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और आसमानी टोला, 6 रन, गजब की बल्लेबाजी। एक और टावरिंग छक्का, 20 रन आए ओवर से और पहले ओवर की कहीं ना कहीं भरपाई की बंटी के विरुद्ध बल्लेबाजों ने। और वैसे भी बहुत खतरनाक बैट्समैन है अगर उनकी आंखें जम जाए तो। ये देखिए पिछले पांव पे जाके इस तरह के वजन का बैट डिलीवरी, खराब गेंद नहीं थी लेकिन शॉट को बनाया वहां पर गैसुद्दीन शेख ने। और 360 डिग्री में खेल सकते हैं, इतनी क्षमता है उनमें। स्लॉगिंग के तो बहुत ही माहिर खिलाड़ी है। बिल्कुल, तालुका क्रिकेट के एक ऐसे बैट्समैन है जो कहीं भी कोई भी शॉट खेल सकते हैं। लेकिन आप देखिए 3 ओवर की समाप्ति के बाद महेंद्रा मैच में वापस आती हुई 31 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे। सचिन गायकवाड का भी आना बाकी है और अगले दौर में क्या होता है आइए सुनते आगे की कहानी अजय घरत की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भावे। एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत प्रतिभा विलास A1 2016 में। चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब लेजेंड ऑफ भिवंडी सन्माननीय विलास आर पाटिल साहब, इस टूर्नामेंट के चेयरमैन सन्माननीय कृष्णा गाजेंगी साहब और चैलेंज स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी की ओर से। नाना स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके हैं, बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन। आपको हमारे प्रियांशी स्टूडियो में रिपोर्ट करना है। ज़बरदस्त पलटवार किया है दोनों भी बल्लेबाजों ने, गैसुद्दीन और बिलाल शेख ने। पिछला ओवर बहुत ही महंगा साबित हुआ बंटी का, जिसमें 3 छक्के लगे, 1 छक्का बिलाल के बल्ले से और 2 गैसुद्दीन के बल्ले से। इसी का नाम क्रिकेट है। पहले ओवर में जहां उन्होंने 2 दे और दूसरे ओवर में कितने दे डाले, 20 रन। ऐसे आज का अगर पूरा दिन हम देखें तो कई ऐसे गेंदबाज है जो 20 के ऊपर रन दे चुके हैं, कई गेंदबाज है जो बिग बाजार में खड़े नजर आए। ये बड़ा आपका अच्छा कहना है, बिग बाजार वाला। होलसेल में मैं कहूंगा कि रन दे डाले वहां पर बंटी ने। अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं उस्मान की पहली गेंद ब्लॉक होल में आती हुई, घुमाया वहां पर कलाइयों को
स्क्वायर लेग अंपायर के सामने से 1 रन के लिए उस्मान की पहली गेंद पर 1 रन बनता हुआ, रन संख्या बढ़ती हुई 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और अब धीरे धीरे जो आक्रमण है उसको विरोधियों के खेमे में लेकर चले गए दोनों भी बल्लेबाज। बिल्कुल, दोनों टीमों की अगर ताकत को हम देखते हैं तो दोनों टीमों के पास बल्लेबाजी की ताकत बहुत मजबूत है, क्योंकि वीरेन के पास हेमंत पाटिल है, राजन है, सुभाष ठाकरे हैं जो कभी भी शुरू हो जाते हैं। बहुत बढ़िया गेंद वहां पर, बैकलिप को नीचा रखना पड़ा था गैसुद्दीन को। ये देखिए, जब आप सटीक लेंथ की गेंद करते हैं, परफेक्ट यॉर्कर करते हैं, तो बैट्समैन कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको इज्जत देनी पड़ती है। नहीं, बिल्कुल सही है। उन्होंने देखा कि गैसुद्दीन आगे बढ़ रहे, कदमों का इस्तेमाल कर रहे, उनके पैरों में गेंद को रखा। बहुत ही शानदार गेंद थी सलीम की, सलीम नाम है गेंदबाज का। बायत से राउंड द स्टंप्स, आशा पाटिल नॉन स्टैंड एंड से मुड़ते हुए इस बार अक्रॉस के लिए वहां पर हवा में गेंद और बेहतरीन कैच, बिलाल शेख की पारी का अंत होता हुआ। फील्डिंग कर रहे हैं नए बैट्समैन सचिन गायकवाड़। और अजय, ये जो सचिन गायकवाड़ है ना, इनके सामने ना हवा काम करती है ना दवा काम करती है। बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं। निश्चित रूप से भारी भरकम शरीर है उनका। हालांकि क्रिकेट में ये जरूरी नहीं है कि बैट्समैन का शरीर यदि भारी भरकम हो तो वो बड़े शॉट ही लगाएगा। क्रिकेट तो नजाकत का खेल होता है, ताकत का यदि खेल होता तो WWE के कुश्ती पहलवानी इसे खेला करते। बिल्कुल, लेकिन पूरे तालुका क्रिकेट के पिक्चर पे हम नजर डालते हैं तो सचिन गायकवाड़ किसी भी कंडीशन में बड़ा स्ट्रोक लगाते हैं। इस बार फ्लिक किया है गेंद को गैसुद्दीन ने, डिप स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात है, राजन ने फिर से अच्छा क्षेत्र रक्षण किया। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन गैसुद्दीन के पास। स्कोर बढ़ता हुआ महिंद्रा स्पोर्ट्स का 34 रन 16 पर पहुंच गए हैं गैसुद्दीन 2 छक्कों की मदद से। एक जबरदस्त साझेदारी बनी थी चौथे विकेट के लिए, उसको तोड़ने में कामयाब रहे सलीम। बहुत खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड, हार्ट ऑफ सिटी। अब दर्शकों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। आशा पाटिल गैलरी पूरी तरह से पैक हो चुकी है। साउथ स्टैंड भी अब आधे से ज़्यादा भर चुका है। लॉफ्टेड शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 6 रन से शुरुआत करते हुए यहां पर सचिन। मोहर लग चुकी थी 6 रनों की। बेहतरीन शॉट, कमाल का शॉट खेला है। आते ही अपने बाजुओं को खोलना शुरू कर दिया है। 6 रनों से अपना रन बनाने का सिलसिला शुरू किया है सचिन गायकवाड़ ने। रन संख्या उछलती हुई महिंद्रा स्पोर्ट्स की 40 रन। अभी भी चौथे ओवर का खेल प्रगति पर, इसके बाद एक और ओवर का खेल बचा है पारी में। सलीम की अगली गेंद, अच्छी वापसी वहां पर, पूरी लंबाई की गेंद, लगभग हेलीकॉप्टर स्ट्रोक की तरह उसको खेला था डीप मिड ऑन पर 1 रन के लिए। बिल्कुल, एक बात तो जरूर है कि जब बड़ी टीमें खेलती है तो कभी भी वापस भी होती है और कभी भी उनकी विकेटें भी गिरती है। लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम था, जब आपके 2 पे 3 विकेटें गिरी थी, वहां पर कोशिश की जा सकती थी और 2 विकेट लेने की। लेकिन आज ऐसा भी है कि क्रिकेट में अगर और मगर को कोई भी जगह नहीं, जो हुआ सो हुआ। ये देखिए, किरण माली, नदीम अंसारी सुपर पावर के फॉर्मर बहुत अच्छे ओपनर थे, कृष्णा गजंगी चेयरमैन, सऊद खतीब और डॉक्टर सोमन। 4 ओवर की समाप्ति, 41 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल अब पारी में शेष है महिंद्रा स्पोर्ट्स के। एक और बड़ा मुकाबला दोस्तों होने जा रहा है
बालाजी स्पोर्ट और नाना स्पोर्ट। एक तरफ जगदीश नाइक तो एक तरफ सुफियान शेख। मैं चर्चा कर रहा था कि ऊंची बैकलिप का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं सचिन गायकवाड़ अपनी बल्लेबाजी में। लंबे लंबे गगनभेदी छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। और एक तरफ सूरज है तो फिर एक तरफ कुमार है। लेकिन यहाँ पर एक तरफ अब राजन है तो दूसरी तरफ गैसुद्दीन और सचिन गायकवाड़। सचिन गायकवाड़ को देखिए, बैकलिफ को ऊंचा इस्तेमाल करते हैं। फुलर लेन गेंद ग्लांस किया है उसको वाइडिश फाइन लेग की दिशा में 1 रन के लिए। 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर 50 का आंकड़ा कहीं ना कहीं पार करना चाहेंगे, वही प्राथमिकता रहेगी बल्लेबाजों की। बिल्कुल, कम से कम चाहेंगे कि 50 के ऊपर महेंद्रा जाए और वीरेन चाहेंगे 50 के अंदर। आज दोस्तों 29 मार्च है। आज के दिन न्यूजीलैंड के फॉर्मर कैप्टन जेफ हवत का जन्म हुआ था 1951 में। आज 1959 में वेस हॉल ने पहला हैट्रिक टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक किया था वेस्ट इंडीज की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ। आज 1979 में क्रिकेट को खैरबाद कहा था मुश्ताक मोहम्मद ने और 1994 में रिटायर्ड लिया था आज ही के दिन एलन बॉर्डर ने। आज ट्रिपल टोन मुल्तान के सुल्तान बने थे वीरेंद्र सहवाग। 2004 में 309 रन की बारी खेली थी। इस समय 4 फील्डर्स ऑफ साइड में और 5 ऑन साइड में खेलने की कोशिश नहीं की गैसुद्दीन ने। जानते हैं कि लेग स्टंप के बाहर जा रही है। अतिरिक्त रन मिलता हुआ वाइड के सौजन्य से। थोड़ा सा कहीं ना कहीं गेंदों को अंदर लाने की कोशिश, हालांकि वो कोन बना के गेंदबाजी करते हैं अक्सर औकात, लेकिन इस वक्त तो राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत तेज गेंद अंदर की तरफ लाए थे, बहुत ही बढ़िया गेंद वहां पर। इससे पहले कि बल्ला घुमाते गैसुद्दीन, गेंद उनके शरीर से टकराई थी। बिल्कुल, और आज ही के दिन 2015 में वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त दी थी न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों से। 4 गेंदें शेष है इस पारी में। राजन राइट आर्म ओवर द विकेट, आगे रखा उसको, अंदर लगी है बल्ले के लिप स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पर फील्डर तैनात है। केवल 1 रन, एक रन से मुझे लगता है कि गेंदबाज को ज्यादा परेशानी नहीं है। उनको पता है कि 2 अच्छे बल्लेबाज उनके सामने, बाउंड्री भी बचाते हैं तो भी उनकी जीत है। बिल्कुल, लेकिन बची भी ये जो 3 गेंदें हैं ये बहुत निर्णायक है। इस पे अगर एक बड़ा स्ट्रोक लगा तो 50 प्लस एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर चेसिंग में डाल देती। कोशिश हो रही है बल्लेबाजों की कि गेंद को उछाल दिया जाए, बाउंड्री के बाहर निकाला जाए। क्रीज के कोने से लॉफ्टेड शॉट और ये जाएगी बाहर। 6 रन। बेहतरीन अंदाज में 50 का आंकड़ा छुआ है इस समय महिंद्रा स्पोर्ट्स ने। आप उनको हमेशा खेलते देखिए, वो आखिर में आते हैं और इसी तरह बल्लेबाजी करते हैं। इस बार लेन गेंद थी, फिर से स्वंग किया है, हाथ लगा फील्डर का और रोकने में कामयाब रहे। ग्राउंड के अंदर है गेंद, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं हड़बड़ाहट। थ्रो बाउंस पर पहुंच रहा था, विकेट कीपर के ऊपर से निकल गया। 1 रन से संतुष्ट रहे बल्लेबाज। आउटस्टैंडिंग फील्डिंग हम कहेंगे, आउटस्टैंडिंग। हालांकि रिकोशेस गेंद हुई थी लेकिन मैदान के अंदर 5 रन अपनी टीम के लिए बचाए और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रन है। ये कहीं ना कहीं बोनस मिला है मैं कहूंगा। उसके बावजूद कि अगर गेंद 6 रन के लिए चली जाती तो स्ट्राइक भी सचिन के पास रहता। हालांकि दोनों भी खतरनाक बैट्समैन क्रीज पर है, लेकिन जिस तरह से स्ट्राइक कर रहे हैं गेंद को, सचिन गायकवाड़ कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं इस समय। ये देखिए राजन चैन का सांस लेते हुए।
पारी की आखिरी गेंद लेकर राजन, आशा पाटिल नॉट स्टैंड इन से गैसुद्दीन के लिए हल्की सी शॉट घुमाकर खेल दिया उसको, 6 रन। और 57, 4 विकेटों के नुकसान पर बहुत ही जबरदस्त रिकवरी महिंद्रा स्पोर्ट्स की। 58 रनों की चुनौती रखी है वीरेन स्पोर्ट्स ठाकुरपाड़ा के सामने। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। ओवर टू सिद्दीक बाबे। तो यही वैन जो व्हीकल है उसी के जरिए हम गेंद को पहुंचाएंगे। देखना है अंपायर उस वैन से गेंद को उठाते हुए तो एक और पन्ना जुड़ता हुआ टेनिस क्रिकेट की दुनिया में ये सोच है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार की, ये सोच है चैलेंज परिवार की। रिवर्स में ले रहे हैं।
बिल्कुल अंपायरों को गेंद देने के बाद अपनी जगह पे पार्क होने जा रही है। अगला मुकाबला जहां पर नाना स्पोर्ट्स के कैप्टन जगदीश नाइक और बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन सूरज हमारे बीच मौजूद हैं। एक ओवर के बाद हम टॉस करेंगे। आइए लौट चलते हैं इस मुकाबले की तरफ जहां पे लक्ष्य रखा है 58 का। ये देखिए लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार वहां पे नजर आ रहे हैं। बैटिंग पावर प्ले सर। ये देखिए रणनीति को बिल्कुल गेम प्लानिंग कितना बड़ा हो रहा है। बैटिंग पावर प्ले पहले ओवर में लिया है वीरेन स्पोर्ट ठाकुर पारा ने। डू और डाई, करो या मरो, जो भी हो जाए पहले ओवर में हो जाए। और गेंदबाजी के लिए इस वक्त बुलाया गया है अजीत को, जो ओपन चेस्ट गेंदबाजी करते हैं साइड आर्म। दोस्तों प्रतिभा विलास एवं 2016 में शनिचर और इतवार में ओपन क्रिकेट सारे हिंदुस्तान के ऐसे खिलाड़ियों को आप देखेंगे जहां पे आप दिल थाम के बैठ जाएंगे। कई महान खिलाड़ी, कई महान टीमें एक्शन में आपको नजर आएंगी। जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा उन सभी के नाम मैं आप तक बता दूंगा, लेकिन देखना ना भूलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट को। लौट चलते हैं। अंपायर तैयार है गेंदबाजी के लिए इस वक्त। अजीत सामना करेंगे बैट्समैन नंदन। नंदन पाटिल नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त हेमंत पाटिल है टीम के कैप्टन। फील्ड की जमावट, दो खिलाड़ी घेरे के बाहर आपको नजर आ रहे हैं। पहली गेंद के साथ नंदन के लिए इस मर्तबा स्वीप कर दिया है गैप के अंदर। तेज आउटफील्ड पे गेंद सड़क रही है, नहीं रोक पाएंगे और गेंद देखना है। अंपायर के इशारे का इंतजार अभी भी नहीं आया है। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। घेतलाय कारण पॉवर प्ले मध्ये स्पेशलिस्ट बॅट्समन असणं खूप महत्त्वाचं असतं आणि हे दोन फलंदाज म्हटलं जातं रिव्हर्स स्वीप चांगले खेळू शकतात, स्पेशलिस्ट आहेत पॉवर प्लेचे आणि काहीसे तसेच प्रात्यक्षिक पहिल्याच बॉलवर पाहायला मिळालं। पहिल्याच बॉलवर स्लॉग स्वीप लगवला 4 धावांसाठी। बिल्कुल एक अच्छी सोच भी है कि पहले ओवर में अगर 20 या ज्यादा रन आते हैं तो फिर वहां से वापसी हो सकती है। येस मॅच मध्ये येऊ शकतात मी म्हणेन पहिल्याच ओव्हर मध्ये। अजीत इस मर्तबा नीची गेंद रही थी, बैकफुट पे जाके स्क्वायर कट करना चाहते थे। सबमरीन गेंद थी, डॉट गेंद विकेट कीपर के पास। लक्ष्य सामने जो है वो है 58 रनों का और जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 11.5 का। अजीत नंदन के लिए बैकफुट पे गए, बहुत खूबसूरत पंच, कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद, 4 रन। भी 4 रन, 8 रन हो चुके हैं और जो फैसला किया है वो 3 गेंदों में सही लग रहा है।
यस, चांगला प्रयत्न इथे पाहायला मिळतो. पहिल्या 3 बॉलवर 2 चौकार येताना दिसले आणि बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये चांगले योगदान देताना दिसतात हे दोन्ही फलंदाज. चांगले क्रिकेट इथे खेळताना वीरेन स्पोर्ट जशाच तसं प्रत्युत्तर 58 धावांच्या टार्गेटला पहिल्याच 3 बॉल मध्ये 8 रन. अजीत इस मरतबा आगे रखा था गेंद को, ड्राइव जरूर किया, बैकलीफ को नीचा रखकर सीधा कवर्स में हरीश पाटिल के पास 1 रन. कुल स्कोर 9 रन बिना किसी विकेट के. आने वाले बल्लेबाजों में सुभाष ठाकरे बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं. गेंदबाजी कर रहे हैं अजीत. हेमंत के लिए बैक फुट पे गए, बहुत खूबसूरत ड्राइव, लेकिन उससे बढ़िया बढ़ के फील्डिंग यहां पर 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. हालांकि जगह बना के स्ट्रोक को खेला था, गेंद के आने का इंतजार किया था. जब ऑफ साइड में आप पंच स्ट्रोक खेलते हैं तो कम से कम आपको जगह होना जरूरी होता है. यस, एकच चांगला स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. नजाकत होती या स्ट्रोक मध्ये, टायमिंग चांगलं होतं. पंकजचं क्षेत्ररक्षण देखील तेवढंच चांगलं पाहायला मिळालं, कारण या मैदानाचा विचार केला तर आउटफील्ड खूप फास्ट आहे. आपण पाहिलं असेल, जर या बॉल नंतर तुम्हाला सांगेन. इस मरतबा फिर से जगह बनाई, बहुत खूबसूरत शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट, 4 रन, क्लास स्ट्रोक. सार पण पाहतोय अतिशय मोठं असं मैदान आहे, चॅलेंज स्पोर्ट्स हे मैदान, आणि अतिशय चांगलं असं प्रतियोगितेचं आयोजन सालाबाद प्रमाणे याही वर्षी 33 वर्षाची ही परंपरा इथे राखली. आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये 15 धावा वीरेन स्पोर्टने इथे दाखवला आपला जलवा. मी म्हणेन बॅटिंग पॉवर प्ले पहिल्याच ओव्हरमध्ये का घेतला हा प्रश्न जरूर चांगला होता, परंतु त्याचं उत्तर या 2 फलंदाजांनी दिलंय. त्यामध्ये नंदन आणि हेमंत याने सुरेख फटकेबाजी केली. सिद्दीक सर, बिल्कुल, जहाँ पे 16 टीमें भरी खेल रहे हो, उस ग्रुप को हम हाफ ऑफ डेथ कहेंगे. यहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते. जब तक आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे आप चैन से नहीं बैठ सकते. और सेमीफाइनल में अगर पहुंचते तो पूरे हिंदुस्तान की टीमें आपका इंतजार कर रही. यस, या गटातून सेमीफायनल मध्ये जो संघ जाईल तो मात्र राजू ओपनच्या विरुद्ध दासरी, खेळताना विनोद दिसेल. गायकर, खान साहब, विश्वास मात्रे और तर 15 धावा पहिल्याच ओव्हरमध्ये पूर्ण केल्यात वीरेन स्पोर्टने. जलवा दाखवला पहिल्याच ओव्हरमध्ये, कारण स्ट्राईकवर ज्यावेळेस हे 2 फलंदाज होते सांगण्यात आलं होतं नेहमीच चांगली स्पेशलिस्ट जोडी आहे ही पॉवर प्लेची. आणि पॉवर प्लेच्या दरम्यान जरूर 1996 मध्ये रमेश कालू वितरणा आणि त्याचबरोबर सनत जयसूर यांनी जो खेळ दाखवला, काहीसा तसाच प्रयत्न इथे पॉवर प्ले फर्स्ट मध्ये करण्यात आला P1 मध्ये. ये अशोक पाटिल को आप देख रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो की थी ग्रेट बैश ने 1992 के वर्ल्ड कप में. वो जो ऑकलैंड क्रिकेट ग्राउंड के जो काटकोने थे उस पर बढ़िया बल्लेबाजी करके. यस, त्याच्या अगोदर विचार केला तर कृष्णमचारी श्रीकांत यांनी देखील चांगली फटकेबाजी केली. स्क्वेअर कटचा बादशाह गुंडप्पा विश्वनाथ मुझे 1970. आज तक याद है कि सेमीफाइनल के अहम मुकाबले में आकिब जावेद की धीमी गेंद पे वो बोल्ड हुए थे. हालांकि उस दरमियान भी एक चौका एक छक्का जड़ चुके थे. इस मरतबा रिवर्स खेलने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर से रुकी नहीं, रन पूरा किया. वहां पर अंपायर का कोई इशारा नहीं. यसुद्दीन को बल्लेबाज गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. बीजू ठाकरे, किरण माली, स्कोर इस वक्त 16 पे पहुंचा है. यसुद्दीन जो गेंदबाजी करते हैं उनके पास काफी वेरिएशन है, उनके पास काफी क्वालिटी है, गेंदों में बदलाव करते रहते हैं. इस मरतबा धीमी गेंद की थी, स्क्वायर कट करना चाहते थे, मोटा सिरा लेकर गेंद डीप टर्मेन पे दूसरे के लिए पलट चुके हैं और यहां पर जाना होगा बैट्समैन को.
हेमंत पाटिल। नए बैट्समैन राजन को ऊपर भेजा है बल्लेबाजी के लिए। नदीम अंसारी को आप देख रहे हैं, विलास पाटिल के बहुत ही काबिल दोस्त और जब सुपर पावर खेलती थी उसके बहुत अच्छे खिलाड़ी। नितिन आर पाटिल क्रमांक 5 के सभापति और विद्यमान नगर सेवक। जैसे जैसे ये A1 क्रिकेट आगे बनेगा, A1 चाम रहेगा। इस मर्तबा रिवर्स खेलने की कोशिश, सवाल पूछा, हाउ इज दैट? अंपायर ने नकारा, लेग बाई। 18 रन एक विकेट गंवाने के बाद। दूसरा ओवर चल रहा है, 18 रन। इस मर्तबा बैकफुट पे चले गए थे, फोर्स किया था गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब। और दाते सर वैसे भी फोर्सिंग जो स्ट्रोक है, आपको तो याद होगा वो डयाना कप हुआ था, उसमें सचिन तेंदुलकर ने फोर्स करके मेगरा को लॉन्ग ऑन पे 6 लगाया था और कॉटनी वॉश ने कहा था कि थैंक्स गॉड मैंने रिटायरमेंट लिया जब ये बल्लेबाज सामने आया है। येस, म्हणूनच क्रिकेटचा देव ही मोठी उपाधी सचिन रमेश तेंडुलकरना देण्यात आली होती. इस मर्तबा ये देखिए धीमी गेंद, ये गेंद इनकी बहुत इफेक्टिव रहती है, बैट्समैन पढ़ ही नहीं पाता है और ये गेंद धीमा बाउंसर जब आता है तो आप टाइम नहीं कर पाते. और कितने ऑकवर्ड तरीके से वहां पे खेला था नंदन पाटील ने. येस, मर्यादित षटकांच्या सामन्यामध्ये आपण व्हेरिएशन खूप महत्वाचं पाहिलं. आपण पाहिलं असेल बांगलादेशचा गोलंदाज मुस्तफिजुर याला, कारण त्याने अनेक मोठमोठ्या फलंदाजांना नमवलंय या स्लोअर वनच्या जाळ्यामध्ये. अब आस्किंग रन रेट थोड़ा सा और बढ़ता हुआ, क्योंकि 19 गेंदों में 38 रन चाहिए. तेज गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा, एक और विकेट गैसुद्दीन के नाम. टेल कहना है बालाजी के कैप्टन का. टॉस होता हुआ और देखना है क्या कुछ हुआ है. हिट, टॉस को जीता है नाना स्पोर्ट ने. बहुत छोटी टिप्पणी मैं लेना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकरे जी, कि टॉस जीत के आप क्या कहना चाहें. बैट बस कहां तक जाना चाहेंगे 5 ओवर में. 50+. जगदीश नाइक, आपकी टीम की तरफ हम देखते हैं, आपको छोड़ के जो बैट्समैन है उतने फॉर्म में नहीं, ये बहुत बड़ा मौका है A1 क्रिकेट में A1 खेलने का. देखो अच्छा मैच है, चैलेंज में खेलने का हर एक को मज़ा आता है. अब 2-3 प्लेयर आएंगे फॉर्म में अभी. शो को आप काफी एंजॉय कर रहे हैं. यस. ऑल द बेस्ट. बालाजी के कैप्टन सूरज, कहा जाता है कि सूरज चल गया तो बालाजी चल गई. आपकी नजर में टॉस इंपॉर्टेंट था. टॉस तो इम्पोर्टेंट था ही, और जीतते तो हम लोग बैटिंग ही करने वाले थे. अभी फील्डिंग करनी है तो भी अच्छी कोशिश करेंगे हम लोग, और कम से कम स्कोर में रोकने की कोशिश करेंगे. सूरज, पूरी टीम पूरी ताकत के साथ आप आए हैं. हाँ, पूरी ताकत के साथ आए हैं. ये जो चाम है, जो एटमॉस्फेयर है, आपको कैसा लग रहा है. एकदम अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा. मतलब क्या बोलो अभी, इसके मेरे पास लफ्ज भी नहीं है बोलने के लिए सर. बिल्कुल. ऑल द बेस्ट. द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज नाना स्पोर्ट वन द टॉस एंड चूज टू द बैट फर्स्ट. इज बैक टू द प्रियांशी स्टूडियो. येस, थँक यू सर. नाना स्पोर्ट वन द टॉस आणि इलेक्टेड टू बॅट फर्स्ट. एक मोठा निर्णय पुढच्या मॅच मध्ये देखील. 58 धावांचं टार्गेट इथे चेस करतोय वीरेन स्पोर्ट. इस बीच अगेन शॉट, पुल और पावरफुल, और गेंद इस वक्त मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर जाती हुई 6 रन.
नंदन पाटील का जो कलेंजा है वो हलक में आया होगा. येस, आपण पाहिलं होतं थोडासा मिस टाइम जरूर झाला होता, वरच्या टोकाला बॅटच्या कुठेतरी बॉल लागला होता, परंतु टाइम झाला होता. आपण पाहिलं सर विराट कोहली याचे स्ट्रोक 2 वेळा काहीसा अशाच प्रकारचं क्रिकेट खेळलं होतं विराट कोहली चेसिंगच्या दरम्यान. मिस टाइम झाले होते आणि दोन्ही षटकार गेले होते, एक पाकिस्तानच्या विरुद्ध एक ऑस्ट्रेलियाच्या विरुद्ध. बिल्कुल, लेकिन विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है ओडीआई में देखिए 25 शतक, उसमें से 14 शतक चेसिंग में बनाए उन्होंने, वो तो बहुत मास्टर है. इस मरतबा बहुत खूबसूरत गेंद वसीम अकरम ने उस दिन कहा जो पाकिस्तान और भारत के बीच मैच था, गोली से नहीं कोहली से डर लगता है. येस, बरोबर आहे. सध्या कोहली चांगल्या फॉर्म मध्ये, परंतु इथे जर विचार केला तर वीरेन स्पोर्ट संघाच्या दरम्यान एक मोठी लढत आहे. इथे सामना जिंकणं खूप महत्वाचं असेल. वीरेन स्पोर्ट विरुद्ध महेंद्र स्पोर्ट, एक हाई वोल्टेज ड्रामा या दोन्ही टीमच्या दरम्यान. शेन वॉर्न का बयान क्या था कि बैकलीफ छोटे में इस तरह के स्ट्रोक हो. एक और स्वाग किया है और गेंद मैदान के अंदर, बढ़िया कैच वहां पर डीप बैकवर्ड. फलंदाजी करताना 26 टार्गेट आहे 58 धावांचं. अतिशय चांगला झेल आपण पाहू शकाल स्क्रीनवर. स्कोर ऑफ द विकेट सेफ हँड झेल आणि फलंदाज मात्र बाद झालाय. तिसरा विकेटचं पतन वीरेन स्पोर्ट 26 रन 3 विकेट. दाते सर, मेरा अपना मानना है कि क्रिकेटर को थोड़ा सा जिम्नास्टिक भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी जब पूरी तरह घूमेंगी तो शॉट सही लगता है. येस, जिम्नॅस्टिक असणं खूप महत्वाचं आहे. कारण आपण पाहिलं असेल आशिष नेहरा यांनी इंटरव्ह्यू मध्ये जरूर सांगितलं होतं विराट कोहलीने खरोखर जर विचार केला तर खूप वेट कमी केलंय. सध्या ग्रीन सलाद पेक्षा तो जास्त काही खाताना दिसत नाही आणि जरूर क्रिकेटरनी या गोष्टी लक्षात घेणं महत्वाचं आहे. फिटनेस खूप महत्वाचं असतं क्रिकेटमध्ये. तुम्ही फिट असाल तर तुम्ही अनेक वर्ष क्रिकेट खेळू शकता. पंकज, जीत के सूत्र को हम देखते हैं, इस गेंद के बाद बात करेंगे. इस मरतबा बैकफुट पे चले गए थे, फोर्स करना चाहता, बल्ले पे पूरी तरह गेंद नहीं आई. जीत का सूत्र देखिए. अब नए बैट्समैन आए सुभाष ठाकरे, और दाते सर ये जो सुभाष ठाकरे है ना, ये जब भी आते हैं तो दर्शक तो बाउंड्री की तरफ देखते हैं. बहुत अच्छे स्ट्राइकर है. जीत का सूत्र मैं बताता हूँ. जब गैसुद्दीन अच्छा खेले तो 70% मैच महेंद्र जीती है, और जब सुभाष ठाकरे अच्छा खेले वीरेन के लिए तो 75% मैच वीरेन जीती. हे चांगलं सूत्र आहे क्रिकेटमध्ये आणि सुभाष ठाकरे व दारोमदार. इस मरतबा अच्छी गेंद आगे रखा था, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे वहां पर सुभाष ठाकरे. की ऑफ सक्सेस जो आकलन है कि कौन खेले तो कौन ऊपर रहता है. आपको तो पता है कि आजकल भारतीय टीम में 2 चेहरों पे ही बाजी लगती है. अश्विन चल गए, गेंदबाजी चल गई, विराट चल गए, बल्लेबाजी चल गई. येस, बरोबर आहे. सध्या आपण विचार केला तर ओपनिंग पेअर आपली सध्या फ्लॉप आहे. कारण आपण पाहिलं असेल शिखर धवन सारखा खेळाडू ज्याच्यामध्ये भरपूर असं टॅलेंट आहे, असा रोहित शर्मा सारखा खेळाडू सध्या फॉर्मशी झगडतोय, परंतु विराट कोहली चांगल्या फॉर्म मध्ये. एक शुभ संकेत. कलरफुल फूलों के साथ बहुत खूबसूरत चित्र. पंकज लंबा हिट लिया है, गेंद के लिए नीचे खिलाड़ी, और एक और विकेट आउट हो गए. बैट 12 गेंदे 30 रन. बहुत ही टफ जरूर इक्वेशन है, लेकिन बाजीगर तो वह है कि इसी तरह की इक्वेशन, इसी तरह की मुहिम को सर करता है. लेकिन चैलेंज ग्राउंड पे आपके सामने, तो चुनौतियों को स्वीकार कीजिए और गो एट, आगे बढ़िए. अब आगे बढ़ने का मौका है मेरे साथी कमेंटेटर का, जिनको के विलास सर ने चांस दिया है. अगले 2 ओवर में मराठी में आइए दाते सर.
धन्यवाद सिद्दीक सर. येणारे 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 12 चेंडूमध्ये 30 धावांचं टार्गेट आहे. पण पाहतो गो अहेड हा स्लोगन आहे या मैदानाचा. चॅलेंज मैदान 1984 मध्ये तयार झालेलं अतिशय मोठं असं मैदान, भिवंडीच्या हार्टमध्ये वसलेलं. कारण आपण पाहतो चारी बाजूने इथे जरूर मोठमोठ्या बिल्डिंग्स आहेत, त्याच्यामध्ये हे वसलेलं मैदान आहे. आणि या मैदानात आपण पाहतोय सातत्याने 33 वर्ष क्रिकेटची सेवा, क्रिकेटची परंपरा अशाच प्रकारे इथे अविरत करताना सन्माननीय विलासजी पाटील साहेब त्यांच्या माध्यमातून हे भव्य दिव्य आयोजन. आणि आपण पाहतो 12 बॉल आणि 30 धावांची आवश्यकता आहे. कारण समोर आहे वीरेन स्पोर्ट आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळताना महेंद्र स्पोर्ट. तर वीरेन स्पोर्ट संघासाठी महत्वपूर्ण लक्ष 12 बॉल 30. गोलंदाज येतोय गैसुद्दीन, एक मोठा गोलंदाज गैसू. सुरेख गोलंदाजी. पहिला चेंडू मात्र स्लोअर वन, टप्पा पडला, चेंडू उसळला आणि सर यष्टीरक्षकाच्या हातात गेलाय. बिल्कुल जाते सर, ये उनका मेन हथियार है स्लो बाउंसर, क्योंकि ये ओवर में मैच बन भी सकता है और मैच बिगड़ भी सकता है दोनों टीमों के लिए. ये देखिए आशा पाटिल गैलरी पूरी तरह से पैक. पुढे एकदा गोलंदाज गैसू, चांगला फटका, चेंडू जातो वाडिश लॉंग ऑनला. आउटफील्ड फास्ट आहे, बुलेट पॉवरफुल फटका, 4 रन. टायमिंग खूप चांगलं होतं. नऊ चेंडू 25 धावांची आवश्यकता आहे. कधी कधी फुलटोस चेंडू म्हटलं जातं क्रिकेटमध्ये, मेजवानी असते, परंतु कधी कधी चुका होतात. बॅट टाइमवर फिरत नसते फलंदाजाची. आता मात्र स्लो रन. पुन्हा एकदा गती परिवर्तन, टप्पा मागे ठेवला, जसा टप्पा पडला आतमध्ये आला, सरळ फलंदाजाच्या अंगावर आदळलाय चेंडू. पंचांचा इशारा, लेग बाईट्स. एकच धाव मिळते. अतिशय चांगली गोलंदाजी येते सिद्दीक सर गैसुची. बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही कहा था कि उनका जो मेन असर है वो है स्लो बाउंसर. आपने देखा कितनी जल्दी गेंद टॉस होकर चेहरे से टकराई थी. हेच प्रत्येक फॉर्म ऑफ क्रिकेटमध्ये खूप महत्वाचं हत्यार असतं गोलंदाजसाठी, एक स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू. आता मात्र वेगवान तेज तर्रार चेंडू जातोय, फुलर लेनचा होता. पंचांचा इशारा, येट्स इट्स व्हाईट बॉल. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 25. 42 नियमामध्ये क्रिकेट खेळलं जातं आणि त्यापैकी 25व्या क्रमांकाचा नियम इथे वापरला जातो, हा व्हाईट बॉल. वीरेन स्पोर्ट संघाची धावसंख्या पुढे सरकली, धावा झाल्या 35. 8 बॉल. बिल्कुल, गैसुद्दीन भी मुस्तफिर रहमान की याद ताज़ा कर रहे हैं. एक धीमी तो एक तेज गेंद कर रहे हैं. येस, चांगलं व्हेरिएशन आहे आणि जरूर याच जाळ्यामध्ये कुठेतरी फलंदाज चूक करतात. मध्येच एखादा फुलर लेनचा चेंडू येतोय, मध्येच एखादा वेगवान चेंडू जातोय, एक स्लोअर वन टप्पा पडल्यानंतर अंगावर येतोय. म्हणजे व्हेरिएशन खूप आहे गैसुद्दीनच्या गोलंदाजीत. बिल्कुल, ऐसी गेंदबाजी को आप पढ़ सकते हैं कब, जब आपके सामने आस्किंग रन रेट ज्यादा नहीं हो. येस, फलंदाजाला सेट होणं देखील तेवढंच महत्वाचं असतं. एक वेळा तुमची नजर बसली बॉलरवर तर त्यावेळेस मात्र फटके येतात. आणि तो मात्र टायमिंग झालं, बॅकफुटवर गेलाय, चेंडू मात्र मिड विकेटच्या वरून. येस, इट्स अ बिगी. दिन की शॉर्ट पिच आएंगी. येस सिद्दीक सर, आपल्याला आठवत असेल अतिशय चांगली फटकेबाजी सचिन रमेश तेंडुलकर यांनी कॅडिकला लगवलेला षटकार बॅकफुटवर जाऊन सरळ मिडविकेटच्या वरतून फेकून दिला होता. आणि काहीसा तसाच विचार केला होता प्रमोदने. पहिलेच विचार करून ठेवला होता की कुठेतरी शॉर्ट पिच पद्धतीची गोलंदाजी होईल आणि तशाच प्रकारे जसा क्रीजच्या मागे गेला चेंडू सरळ मिडविकेटला फेकून दिला. अभी भी एक बात मैं आपको कहता हूं, इस मैच का जो भी परिणाम है, या तो शुभाट ठाकरे की बल्लेबाजी लिखेंगी, या तो ये जो गेंद बची है गैसुद्दीन की, बहुत इंपॉर्टेंट गेंद है,
म्हणूनच क्रिकेटच्या महासंग्रामामध्ये बॅट आणि बॉलचं युद्ध म्हटलं जातं. तोच महासंग्राम हा क्रिकेटचा कुंभमेळा इथे पाहायला मिळतोय. पण पाहतोय अतिशय मोठं असं आयोजन क्रिकेटच्या कुंभमेळ्याचं जसं आयोजन केलं जातं तेच आयोजन इथे विलास पाटील साहेबांनी दाखवलंय. ये हो रहा है ना सबसे बड़ा मुकाबला. यस, पुन्हा एकदा फुलरलेनचा चेंडू होता, पुन्हा एकदा क्रीजचा वापर केला. चेंडू मात्र मिड विकेटला, एका धावेसाठी स्ट्राईक घेतली. मी म्हणेन फलंदाज सुभाष ठाकरे यांनी ही एक महत्वपूर्ण स्ट्राईक असेल शेवटच्या ओव्हरमध्ये. 6 बॉल 16 धावांची आवश्यकता. सिद्दीक सर, बिल्कुल पहली या दूसरी गेंद पर थोड़ा सा क्लियर पिक्चर आ जाएगा. अभी भी मैं कह रहा हूं कि बंद लिफाफे की तरह मैच आगे बढ़ रहा है, बंद कुरियर की तरह. Yes. अभी भी हम कह नहीं सकते दाते सर, लेकिन पहली और दूसरी गेंद ये तय करेंगी कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है. येस, पहिल्या 2 बॉलवर पूर्णपणे चित्र स्पष्ट होईल. या मॅचचं एक मोठी मॅच आहे दोन्ही टीमसाठी, कारण आपण पाहतोय महेंद्र स्पोर्ट आणि वीरेन स्पोर्ट या दोन्ही मोठ्या टीम मानल्या जातात या विभागातल्या तालुका स्तरावरच्या. यानंतरची मॅच देखील मोठी आहे. नाना स्पोर्ट आणि बालाजी स्पोर्ट या टीमच्या दरम्यान नाना स्पोर्टने टॉस जिंकलाय आणि प्रथम बॅटिंग करतायत. तर इथे टीम मिटिंग बोलवली जाते. एक चांगला निर्णय मी म्हणेन, कारण डू ऑर डाय कंडिशन आहे दोन्ही टीमसाठी. 6 बॉल 16 धावांची आवश्यकता बॅटिंग करणाऱ्या टीम वीरेन स्पोर्टसाठी. परंतु 6 बॉलमध्ये 16 धावा कशा रोकायच्या याचा मात्र कान मंत्र दिला जातोय कॅप्टनच्या माध्यमातून. बिल्कुल मेरे ख्याल से अरुण को गेंदबाजी दी गई है, अरुण को गेंदबाजी दी गई है. येस, निर्णय इथे चाललाय. मला वाटतं अरुणच्याच हातात चेंडू सोपवण्याचा प्रयत्न कॅप्टन करतोय की काय. थोड्याच वेळात आपल्यापर्यंत डिसिजन येईल. पाहूया. 6 बॉल 16 धावांची आवश्यकता. आपण पाहतोय डॅशच्या माध्यमातून सन्मान्य विलास पाटील साहेब आयोजक आहेत, परिजी भानुशाली सर, त्यांच्याच बरोबर अनेक मान्यवर तिथे बसलेत, या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. आणि आपण पाहतोय मी म्हणेन क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा मी व्हेकल बघितली की ती व्हेकल बॉल घेऊन गेली होती क्रिकेटच्या मैदानावर. एक कल्पक बुद्धी लागते या गोष्टी करण्यासाठी. अजय पाटिल भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है. आपण पाहतोय किती कल्पक बुद्धीचा वापर विलास पाटील साहेबांनी केलाय, कारण बॉल घेऊन एक टॉय कार आतमध्ये गेली आणि तो बॉल अंपायरने घेतला. विश्वास हुई भी वहां नजर आ रहे. 6 गेंदे 16 रन. हे 6 बॉल 16 धावांची आवश्यकता. सध्या स्ट्राईक वर आहे सुभाष ठाकरे. राऊंड विकेट. पहिला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाहेर. पंचांचा इशारा. येस, इट्स व्हाईट बॉल. अंपायर डिक्लेअर बाय. संघाची धावसंख्या पुढे सरकते. बिल्कुल मैं एक बात आपको जरूर बताऊंगा. जो अरुण है, उन्होंने जो मेयर कप 2004 को जयदुर्गा ए ने जीता था, उस वक्त वो बहुत ज़बरदस्त गेंदबाज थे. लेकिन 12 साल पहले की बात है. आज बहुत से ऑप्शन थे यहाँ पर. कप्तान पपिया खाड़ी के पास हरीश पाटिल भाई आपके अच्छे गेंदबाज हैं, काफ़ी ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने गेंद अरुण को थमाई है. ये एक अलग गेम प्लानिंग नजर आ रही. जरूर म्हटलं जातं अनुभव खूप आहे या गोलंदाजाकडे. अनुभवाचा वापर करावा लागेल आणि अनुभव इथे झोकावा लागेल गोलंदाजाला. इथे मात्र जरूर टायमिंग चुकलं. चेंडू हवे त्या फाईन लेगच्या दरम्यान क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकला नाही. 1 रन घेतोय. दुसरी धाव घ्यायची सुभाष ठाकरेला आणि इथे मात्र फंबल. दुसरी रन देखील कंप्लीट. मॅच मध्ये टर्निंग होताना दिसतंय कुठेतरी. या 3 धावा म्हणजेच या अगोदरची व्हाईट बॉल आणि या 2 धावा महत्वपूर्ण असतील सर. बिल्कुल दबाव क्या रहता है, इसीलिए तो कहा है कि दबाव को जो भी प्रेशर को हैंडल करता है वही मैच जीतता है. यहाँ पर एक समाचार महेंद्रा के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि स्ट्राइक सुभाष ठाकरे के हाथ से जा रहा था, स्ट्राइक सुभाष ठाकरे के हाथ में आया है. येस, मागच्या ओव्हरमध्ये देखील शेवटच्या बॉलवर सिंगल घेतली, स्ट्राईक आपल्या जवळ ठेवली. इथे मात्र 1 रन होती, तिथे 2 रन घेतला, स्ट्राईक पुन्हा एकदा आपल्या जवळ ठेवली. कुठेतरी सुभाष ठाकरे हा फॅक्टर या मॅच मध्ये खूप महत्वपूर्ण ठरेल. परंतु गोलंदाज जर विचार केला तर अरुण, ज्याच्या खांद्यावर अनेक वर्षाचा अनुभव आहे क्रिकेट खेळताना. अनुभवाचे बोल आपण पाहिलं असेल. 36 वर्षाचा आशिष नेहरा प्रत्येक बॉल नंतर अनुभव व्यक्त करतो महेंद्रसिंग धोनीच्या बरोबर. इथे मात्र काहीसं तसंच अरुण स्वतःचा अनुभव पणाला लावताना दिसेल या मॅच मध्ये, कारण धावा आहेत 5 बॉल आणि 5 बॉल मध्ये 13. बिल्कुल धोनी को तो सलाम है. जब उन्होंने वर्ल्ड कप 2011 को जीता था तो जहीर खान को छोटे छोटे स्पेल देकर विकेट ली थी. अब वो काम नेहरा और अश्विन से कराते. येस, 2007 मध्ये देखील तुम्ही पाहिलं असेल वर्ल्ड कप ज्यावेळेस भारतीय संघ जिंकला पहिला T20चा, तो जोगिंदर शर्मा होता. तो सध्या हरियाणाचा DSP आहे.
तर कुठे जोगिंदर शर्माचं ते षटक आणि आता जर विचार केला तर 36 वर्षाचा नेहरा अशा प्रकारची गोलंदाजी करतोय. पाहूया अरुण पुन्हा एकदा गोलंदाज. चांगलं टायमिंग सुभाष ठाकरे याचा लॉंग ऑन वाईड इज लॉंग ऑन. येस इट्स बिग इट्स 6. सिक्स हम कहेंगे, बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक. इसीलिए तो दाते सर मैं कहता हूं अक्सर कि जो सुभाष ठाकरे है ना, ये जब भी आते हैं तो दर्शक बाउंड्री पे देखना शुरू कर देते हैं. येस चांगली फलंदाजी इथे सुभाष ठाकरे, परंतु अरुण याला देखील कुठेतरी अनुभव पणाला लावायला लागेल, चांगली गोलंदाजी करावी लागेल आणि जर सुभाष ठाकरेचे स्ट्रोक रोखायचे असतील तर मात्र जरूर चांगला प्रयत्न इथे करावा लागेल. परंतु क्रिकेट म्हटल्यावर नेहमीच म्हटलं जातं बॅट आणि बॉलचं युद्ध हा क्रिकेटचा कुंभमेळा आहे, क्रिकेटचा महासंग्राम आहे. या महासंग्रामामध्ये असे सामने आपल्याला येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये पाहायला मिळतील. बिल्कुल, क्रिकेट में इसीलिए अगर और मगर को कोई जगह नहीं है, लेकिन कहाँ मैच जा रहा था और कहाँ मैच बन गया. येस 4 बॉल 7 धावांची आवश्यकता आहे. एका षटकाराने कुठेतरी मॅच कन्वर्ट होताना दिसते, मॅच बदलताना दिसते, सिच्युएशन बदलताना दिसते. आपण पाहतोय एक फॉरवर्ड शॉट लेग लावण्यात आलाय फलंदाजावर प्रेशर आणण्यासाठी. बिल्कुल, अंपायर बता रहे हैं कि आपको कुछ वहाँ पे मुंह से नहीं कहना है. एक बात जरूर है दाते सर, ये जो बैट्समैन है सुभाष ठाकरे, ये सिंगल डबल के लिए तो नहीं जाएंगे, आर या पार. हेच दबाव टाकण्याचा प्रयत्न इथे पाहायला मिळतो. आपण पाहतो फॉरवर्ड शॉट लेग इथे लगवण्यात आलाय, प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न करतो आणि अंपायरनी सांगितलंय तुमची सावली देखील पडली नाही पाहिजे, त्याचबरोबर तुम्ही बोलू नका फॉर द विकेट. इथे मात्र टायमिंग चुकलं, बॅटची आतमधली कडा घेतली, चेंडू मिड विकेटला ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव पूर्ण होते, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न सुभाष ठाकरे करतील. पुन्हा एकदा फंबल आणि इथे मात्र अंपायर डिसिजन. तीसरे अंपायर की मदद ली है वहाँ पर ग्राउंड अंपायर ने. येस चांगला निर्णय मी म्हणेन सिद्दीक सर, कारण सध्या मॅच टर्निंग पॉइंटवर आहे. बिल्कुल, मैच बहुत कट टू कट चला है और आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो अच्छा निर्णय अंपायर का. येस टेक्नॉलॉजीचा वापर करणं खूप महत्वाचं आहे, कारण आपण पाहतोय मी म्हणेन सध्या भारतामध्ये सगळ्यात मोठी टुर्नामेंट आहे आणि या टुर्नामेंटमध्ये हाय डेफिनेशन कॅमेरे वापरले जातात. पाहतोय आपण पहिली रन घेतली, दुसरी रन घेण्याचा प्रयत्न, बॉल हातातून सुटलाय. आणि इथे तिसरे अंपायर जरूर निर्णय देतील. एक बात जरूर है दाते सर कि मैंने आपको बताया था कि जीत का सूत्र वही दोनों खिलाड़ियों के अतराफ में घूमता हुआ. थर्ड अंपायर डिसिजन तोपर्यंत येईल तत्पूर्वी जरूर चर्चा होईल या डिसिजनवर, कारण आपण पाहतोय रनआउटची संधी, बॉल हातातून पहिल्यांदा सुटतो, नंतर दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये बॉल पकडला जातो, फेकला जातोय. 2 अँगल वापरले जातात, हाय डेफिनेशन कॅमेरे. मी म्हणेन भारतामध्ये पहिल्यांदाच या टेनिस क्रिकेट बॉल स्पर्धेमध्ये एवढं चांगलं कॅमेरा वर्क. बहुत जबरदस्त टेलीकास्ट आप देख रहे हैं. तिसरा अँगल आणि या अँगल मध्ये थोडंसं स्पष्ट होतंय चित्र आणि अंपायर लगेचच डिसिजन देतील. नॉट आउट. तर निर्णय का नॉट आउट आला याचं विश्लेषण जरूर करेन. ज्यावेळेस बॉल हातातून सुटला त्याने दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये ज्यावेळेस बॉल लावण्यात आला होता त्यावेळेस कुठेतरी बेल्स पडली. स्टंप उचलणं खूप महत्वाचं होतं, बॉल हातात पकडून क्षेत्ररक्षकाला, आणि ते झालं नाही सिद्दीक सर. बिल्कुल, ब्रेक दी बेल्स के बाद ब्रेक दी स्टंप्स का जो रूल है उसको शायद अरुण भूल गए. येस आणि 2 धावा इथे मात्र मिळतील. आणि पहिल्याच नजरेमध्ये अंपायरने हे पकडलं होतं सर. अतिशय चांगली पंचांची भूमिका इथे पार पाडताना दिसत. मी काल देखील म्हटलं होतं अतिशय तीक्ष्ण नजर आहे, घारीसारखी तीक्ष्ण नजर, मोरासारखे तिखट कान असलेले हे 2 पंच, आणि या पंचांचं नाव मोहम्मद रफिक. अतिशय चांगली पंचांची भूमिका पार पाडताना दिसतात. लगेच डिसिजन दिला होता नॉट आउट आणि नंतर रेफर केला होता तिसऱ्या अंपायरकडे. 2 रन मिळाले. 3 बॉल 5, एक मोठी मॅच. 3 बॉल 5.
स्ट्राईक असेल सुभाष ठाकरे. या मॅच मध्ये वीरेन स्पोर्ट की महेंद्र स्पोर्ट, कुठला संघ ही मॅच जिंकेल हा प्रश्नचिन्ह आहे दोन्ही समर्थकांमध्ये. पहिल्यांदा टाळ्या वाजत होत्या, शिट्ट्या वाजत होत्या, परंतु आता मात्र सर्व प्रेक्षक जागच्या जागेवर स्तब्ध आहेत. प्रत्येक प्रेक्षकाच्या मनात कुठेतरी चाललंय कोण जिंकेल ही मॅच. एक मोठा प्रश्न आहे आमच्या समालोचन कक्षात, एक मोठा प्रश्न आहे पब्लिक मध्ये देखील. गोलंदाज सुरेख गोलंदाजी, फॉरवर्ड शॉट लेग तैनात, धाव मात्र मिळणार नाही. आता मात्र 2 बॉल 5. काठी टक्कर, कडा संघर्ष, कश्मकश या मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. प्रत्येक बॉल नंतर समीकरण बदलतंय. एक मोठ्या मॅच मध्ये जरूर प्रेक्षकांची संख्या देखील, शिट्या वाजतात, कुठेतरी स्तब्ध प्रेक्षक देखील पाहायला मिळतंय. हृदयाचा ठोका चुकवणारी ही मॅच आपल्या समोर. येणारे बॉल आहेत 2 आणि 2 बॉल 5. 2 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर, गोलंदाज तैनात. क्षेत्ररक्षणात अप्रतिम सजवलंय. लॉंग ऑन फाडिश लॉंग ऑन, मिड विकेट, स्क्वेअर लेग. आणि अखेर आपण पाहतोय चांगला झेल इथे स्क्रीनच्या माध्यमातून. शेवटच्या हातात येईपर्यंत बॉलवर नजर ठेवली होती आणि त्यानंतर मात्र जल्लोष पाहायला मिळतो क्षेत्ररक्षकाचा. यस, गडी बाद होताना दिसतोय. एक मोठी विकेट सिद्दीक सर. बिल्कुल, हरीश पाटिल को पता था कि सुभाष ठाकरे का कैच है, हालांकि मिस टाइम स्ट्रोक था, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन पे और गेंद चली गई थी लॉन्ग ऑफ पे. एक गेंद 5 रन, अगर चौका लगा तो पहला सुपर ओवर हम देखने जा रहे हैं. प्रतिभा विलास A1 2016 का. तीनों ऑप्शन खुले, या तो महेंद्रा की जीत या फिर जीत वीरेन की. सिक्सर लगा और चौका लगा तो फिर सुपर ओवर. हेच 3 ऑप्शन इथे असतील. चौकार लागला तर सुपर ओव्हर, एकाकडे षटकार लागला तर मात्र जरूर वीरेन स्पोर्ट इथे जल्लोष करताना दिसेल. परंतु दोन्ही संघासाठी डू और डाय कंडिशन आहे, कारण एक बॉल पूर्णपणे चित्र बदलेली आहे मॅच. बिल्कुल, ये जो गेंद है ना, इसका क्लाइमैक्स और इसका सस्पेंस इतना बढ़ चुका है कि दीवार पिक्चर के बाद सलीम जावेद अगर अलग भी नहीं होते ना तो भी इसका क्लाइमैक्स नहीं लिख पाते. यस, एक मोठी मॅच आपल्या समोर आणि जरूर प्रेक्षकांचं हृदय धडधडत आहे. इसीलिए तो एक गेंद है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप देख रहे हैं टेनिस दुनिया का A1 शो. यस, जरूर A1 शो आहे. प्रतिभा विलास ट्रॉफी 2016, A1 ट्रॉफी 2016 चे भव्य दिव्य आयोजन. जरूर टाळ्या वाजून स्वागत करायचं आहे या 1 बॉल 6 धावांचं, 1 बॉल 5 धावांचं. आणि इथे मात्र वेगवान चेंडू, सामना जिंकलाय महेंद्र स्पोर्ट्स या टीमने. शेवटच्या बॉलवर अतिशय चांगली गोलंदाजी. फुलर लेनचा चेंडू होता, अक्रॉस द लाईन होऊन त्याला मिड विकेटला मारण्याचा प्रयत्न फसलाय आणि ते सामना जिंकला. आपण पाहतोय समर्थक उत्साह दाखवताना दिसत आहेत महेंद्र स्पोर्ट या टीमसाठी. एक मोठी मॅच इथे संपली. सिद्दीक सर, यानंतरच्या मॅचची सूत्र पुन्हा एकदा सिद्दीक बाबा यांच्या तोंडातून आपल्या समोर. बहुत बहुत धन्यवाद दाते सर. तो इस तरह महेंद्र स्पोर्ट्स ने इस मैच को जीत लिया. कॉन्ग्रेचुलेशन महेंद्र स्पोर्ट्स, द कैप्टन बपिया खारीक एंड हार्ड लक सुभाष ठाकरे, हार्ड लक हेमंत पाटिल. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है गैसुद्दीन. 360 डिग्री में बल्लेबाजी करने वाले बैट्समैन गैसुद्दीन, जिन्होंने 17 रन बनाए और कुल मिलाकर 1 विकेट लिया. कमेंटेटर सुनील पवार, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. गैसुद्दीन, आपको आगे में मैन ऑफ द मैच. आइए हम मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं माननीय श्री वासुदेव असावा जी की शुभ बातों से. वेलकम सर, प्रियंसी स्टूडियो में आप. Fans, appliances, wires and switches. इस वक्त ये चेक दे रहे टीबी डी का ये चेक गैसुद्दीन को बढ़िया ऑलराउंड परफॉर्मेंस पे. किशोर वारे की तरफ से दिया जाने वाला ये गिफ्ट हैम्पर
और ये वाउचर भैरव लाइफ स्टाइल का गिफ्ट वाउचर अनेक अनेक मान्यवर्स का मैं धन्यवाद करता हूं कि मैन ऑफ द मैच के लिए हमारे प्रियंशी स्टूडियो में आए। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन गैसुद्दीन। हम आकलन कर रहे थे कि जीत का सूत्र की ऑफ सक्सेस, गैसुद्दीन चल गए, महेंद्र जीतेंगी, सुभाष चल गए तो फिर वीरेंद्र जीतेंगे। ये जो टफ मुकाबला आपने जीता है कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है और सामने भी काफ़ी मजबूत टीम थी और पब्लिक को भी अच्छा लगा देखने में, और सुभाष ठाकरे ने काफ़ी अच्छा बैटिंग किया, अपने ऊपर लेके पूरा गेम खेला। और जिस तरह का परफॉर्मेंस है, जो गलतियां हुई है आपकी टीम की तरफ से, उसको सुधार कर अगले मैच में आप एवन शो में आना चाहेंगे? बिल्कुल, गलती तो बहुत